Okay, hello students. How are you? I hope you all are fine and doing well. Okay, in this video we're going to discuss on of history in the lesson of the chapter is in the earliest city. Okay, let's start class. First question: what does civilization mean? See the point. The term civilization means advanced stage of development. Advanced stage of development is very important. ठीक है, मतलब कुछ जो पहले जैसे वो थे उससे वो कहीं अच्छे ढंग से वो रहने लगे थे, डेवलपमेंट विकसित होने लगे थे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, द सिविलाइजेशन मीन्स अ मोर कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग लिविंग इन सिटीज अ टाउन अ सरप्लस फूड प्रोडक्शन. मतलब क्या है कि जिसका जो उसका लाइफ स्टाइल्स था, ठीक है, वो कहाँ रहते थे पहले. In the beginning, in the Paleolithic age, they live in a cave. In the Neolithic age, they live in a hut. Okay. Before that, they live in a village. They live in a forest. After that, Paleolithic and the Neolithic age, in the Mesolithic age, they live in a forest. After that, they live in a cities and town. Okay. So this is development. Surplus food production. So what they do now, they have to produce more food grains. Okay, why do they produce more food? Because at that time they live in a clan. Okay, they live together. They started permanent settlement in the small clan. So they need food. They need more food, extra food. So that's why they have to produce plentiful of food production. Okay, right. Then sophisticated religion belief. Then after, from in the beginning, they have to believe that there only fire आग. Okay, so fire was a deity. Okay, god. So वो लोग सोचते थे कि पहले उन लोगों का जो फायर था, आग था, वो आग ही क्या था, उन लोगों का भगवान था. ठीक है, तो वो लोग भगवान के रूप में पूछते थे किसको, फायर को. बट लेटर ऑन इन द Paleolithic age and Neolithic age, and after Mesolithic age, they also worship a forest. Okay, then they also worship snakes. They also worship cows. Okay, so then the religion system, they develop into something different. Okay, initially what they believe, they only worship only few things, just like fire. Okay, but later on they worship all the natural things, just like mountains, rivers, etc. Okay, then use of languages, but later on what they use language. In previous what they use only signs and symbols, but later on they use languages in a written form. It's very important, in written form. Okay, then later on what happens, see, development of arts and crafts. See the arts and craft. Okay, what they do, what is arts, मतलब हाथ से कुछ ऐसा चीज़ बनाया गया चीज़ जो इस्तेमाल में आती थी. जैसे सी द पॉट्स, दिस इज मेड, दिस हैंड मेड थिंग्स. ओके, लाइक सी द स्टेच्यू ऑफ बुल. ओके, दिस आर द आर्ट एंड क्राफ्ट दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. ये क्या है, विकसित होना. व्हाट इज विकसित, मतलब पहले जो सिस्टम था उससे एकदम डिफरेंट वे में वो अपना जीवन व्यापन करना, मतलब लाइफ स्टाइल को चेंज करना, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट. राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, सी the earliest civilization. Okay, so all over the world civilization process begin in the river valley. Okay, से क्या है कि जितना भी civilization हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रिवर बैंक, ये तो रिवर वैली के पास में हुआ था. तो इसी तरह हमारे पास वर्ल्ड में 4 ग्रेट सिविलाइजेशन हुआ था अराउंड 5000 ईयर एगो. 5000 साल रिवर के किनार में 4 प्रमुख सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुए थे. तो फर्स्ट डेवलपमेंट क्या था, फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये कहाँ पे हुआ था, इंडिया में. ठीक है. सेकेंड सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, इजिप्शियन, दैट इज कॉल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन. वो भी कहाँ हुआ था, रिवर बैंक, स्पेशली कौन सा रिवर, नाइल रिवर, कहाँ पे, अफ्रीका में. ओके. थर्ड वन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर के पास में. ठीक है, इराक स्पेशली, इराक का 2 रिवर है, ये यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, उसके बीच में एक आइलैंड है, उसे बोलते थे मेसोपोटामिया. वहाँ पे जो लोग रहते थे, ओके, द पर्सन हु लिव इन द आइलैंड, दैट पर्सन्स आर कॉल्ड मेसोपोटामियंस. ओके,
देन फोर्थ वन इज चाइनीज सिविलाइजेशन, मतलब चाइनीज़ का विकसित कब हुआ था, तो वो कहाँ पे हुए थे, वो स्पेशली वैली ऑफ वांग हो रिवर एंड यांगजी रिवर, तो ये दो रिवर के बैंक में उन लोग का विकसित हुआ था। ओके, दिस इज द 4 civilization of the world. Now next we'll see why civilization rose near the river valley. मतलब क्या है कि जितना भी सिविलाइजेशन हुआ था वो रिवर के वैलीज में क्यों हुआ, ठीक है, वो प्लेन्स में, प्लेटू में, रिवर या तो माउंटेन्स में क्यों नहीं हुआ, वो रिवर के पास में ही क्यों लोग विकसित हुए थे, कारण क्या था, वाई दे स्टार्टेड द सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, दैट इज अ क्वेश्चन. सो सी द फर्स्ट आंसर. द रिवर water was used to grow fruits, vegetables, cereals, crops. The men also eat fishes and many kinds of water birds. Okay, ये फर्स्ट रीज़न है कि वो लोग को उस वक्त फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ सीरियल्स, मतलब कुछ अनाज ग्रो करने के लिए, है ना, पानी चाहिए, तो पानी कहाँ में मिलेगी, रिवर में मिलेगी, तो इसीलिए रिवर के वो पास में रहने लगे थे, और रिवर से कुछ मछलियाँ मिल जाती थी और कुछ बर्ड्स भी मिल जाते थे. तो उस वक्त क्या था कि वो अर्ली मैन से कुछ ज़्यादा विकसित हो चुके थे, तो वो फिर भी वो क्या था, फिशेस और बर्ड खा के जीवन व्यापन कर रहे थे. ओके, इसलिए वो रिवर के पास रहते थे. सेकेंड पॉइंट क्या है कि अ गुड पास्चर लैंड नियर बाय वाज यूज्ड फॉर एनिमल टू ग्रेज ऑन. ओके, उस वक्त क्या था कि दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल जस्ट लाइक शीप एंड काउ. ओके, इवन हॉर्सेस. सो उसके लिए तो चाहिए ना चारा, ना फोडर चाहिए, तो फोडर कहाँ से मिलती थी, जितना भी रिवर का बैंक था उस रिवर का बैंक में हरा भरा घास था, उसी घास में चराते थे, तो चराने के लिए जगह भी मिल गया, तो इसलिए वो लोग क्या रिवर के पास में रहते थे. ओके, थर्ड पॉइंट. The valley had warm and pleasant climate. The cold was never very severe in the valley. मतलब उस वैली में जो हवा था, जो वातावरण था, ना तो इतना गर्म था ना तो ठंड था, तो क्लाइमेट एकदम माइल्ड होने के कारण से, एकदम अच्छा होने के कारण से, ना तो गर्मी ना ठंड, इसकी वजह से दे प्रीफर टू लिव इन द बैंक ऑफ रिवर. राइट, नाउ द फोर्थ पॉइंट. The river provided ready means of communication and transport as there were no long और गुड रोड टू कनेक्ट द एंशिएंट टाउन. उस वक्त जितना भी पौराणिक जगह में जितने भी टाउन्स थे, छोटे छोटे, है ना, क्लैंस थे, तो वो क्लैंस में यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ओके, अच्छा रास्ता नहीं था, ना तो रोड था, ठीक है, ना तो एयरपोर्ट था, ना कुछ था, तो वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ जाने के लिए दे यूज टू प्रिफर वाटरवेज. ठीक है, वाटरवेज क्या था कि वाटर में अपना नदी में वो लॉग बांधते थे, लकड़ियाँ बांध के वो यातायात करते थे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के वो करते थे विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, सो यहाँ से वहाँ करने के लिए, मतलब अपने सामान को भेजने के लिए या तो अपने आप को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी वो पानी का इस्तेमाल करते थे. अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स वाई ऑल these reasons says that they wants to live in the river valley. Right, now next we'll go to see the next slide what we have. Okay, Indus Valley civilization, first civilization, that is also called okay, see the first Harappan civilization, right? Harappan civilization. So Indus Valley civilization developed in the northwestern part of India. So ये कहाँ पे हुआ था, ये डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, जैसे बोले तो पाकिस्तान के थोड़ा सा पास में, पाकिस्तान के पास में, ठीक है, पाकिस्तान में कह सकते हैं एग्जैक्टली. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन. इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हरप्पा. व्हाट इज हरप्पा? इज़ अ प्लेस, इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. ठीक है, सो 1921 में एक साइट, मतलब व्हाट इज साइट, मतलब एक एरिया जहाँ पे आदमी लोग विकसित हुए थे. ठीक है, तो ये पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था हमारे इंडिया में 1921 में. ठीक है, वो अभी कहाँ पे है? मोंटोगेमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब.
पाकिस्तान। फिलहाल तो क्या है कि पहले पंजाब में था, अभी क्या पाकिस्तान में हो चुका है, ठीक है। तो वो पहले सब कंटिनेंट में, हमारे इंडिया का जस्ट पास में क्या होता है, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है क्या उसका, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली हुई थी, इसलिए इसको कहा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। थर्ड पॉइंट सी, सिंस द सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड अराउंड द रिवर इंडस एंड इट वॉज ट्रिब्यूटरीज, क्या लगा कि जितना हमारा जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो इंडस रिवर्स के वैली में, और उसके कुछ छोटे छोटे नदियाँ, ठीक है। तो इंडस रिवर तो बड़ा रिवर है, उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ जो घुल मिल जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो कौन कौन सा रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है, रिवर रवि, बीस, चेनाब, सतलज एंड झेलम, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियाँ, इसके बगल में, इसके बैंक में भी क्या हुआ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हड़प्पा। हड़प्पा या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सेम थिंग, ओके। बीइंग द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर द सिटी बरीड अंडर द अर्थ वाज डिस्कवर्ड, ओके। पहली बार जो एक बड़ा सा जो हड़प्पा जो सिटी था वो बहुत साल पहले, ठीक है, क्या हुआ था कि हमारे अर्थ में वो किसी कारण से वो दब गया था। उसको फिर क्या हुआ कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एविकेट किया, मतलब उसको वहाँ से निकाला गया, और ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारा मतलब मटेरियल्स जो ऐसा निकला जिससे प्रूफ हुआ कि वहाँ पे क्या था, हड़प्पन सिटी था, ओके। सो इसलिए इसको कहा गया है हड़प्पन कल्चर, ओके। सी द साइट ऑफ हड़प्पन, ठीक है, ये एक साइट है, एरिया है, ये कहाँ पे, हड़प्पा का एरिया है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट विल गो टू स्लाइड, दिस स्लाइड सी, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज, इसको कहा गया है चालकोलिथिक एज। स्पेशली कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था उसको कहते हैं चालकोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। अब चालकोलिथिक एज का मतलब क्या है कि ऐसा एज, एन एज इन विच आर्म्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ द स्टोन्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड साइड बाय साइड विथ दोस ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, ऐसा एज जिसमें वो अपना कुछ हथियार या तो कुछ बर्तन, व्हाट इज आर्म्स, हथियार, या व्हाट इज यूटेंसिल, बर्तन, जो स्टोन का बना हुआ इस्तेमाल कर रहे थे, साइड बाय साइड वो लोग कॉपर का चीज़ या तो ब्रोंज का चीज़ भी वो इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, स्टोन एज वेल, यहाँ पे क्या, ये स्टोन का चीज़ है, यहाँ मेटल्स भी है, ब्रोंज भी है, और ये भी एक कॉपर का है, ठीक है। तो इस वक्त क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग स्टोन्स का भी और कॉपर, ठीक है, और ब्रोंज, ये तीनों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इस पीरियड का कहते थे, इस समय का कहते थे चालकोलिथिक एज, ओके। डन, नाउ नेक्स्ट we don't have, so okay, this much is about the Indus Valley civilization, okay. In the next video we're going to discuss about the Mesopotamia civilization, okay. तब तक के लिए stay happy and stay safe, thank you.